for our media friends exclusively. There is also another exhibition which is going on side by side at another venue in Jalandhar itself. बहुत आराम से कहते हैं 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड इशू कर दिए, 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, 45 करोड़ लोग with the 7 crore women have got Mudra. Did you utilize Mudra loan? Beneficiaries So that the media can further disperse this information, share this information through articles, through their video clips, through any audio material with the public at large. तो उसी पर्पस के तहत हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, so that whatever information we feel is amiss, if there is any gap in the information that our media friends currently have, we can bridge that gap. That is the basic purpose of a Vartalap. Vartalap is basically an informal discussion forum between the media and the Press Information Bureau, which is a media unit under the Ministry of Information and Broadcasting. Today we are gathered with our teams from both PIB Jalandhar and PIB Chandigarh. I welcome Shri Rajinder Chaudhary sir. Sir is our Additional Director General from the 1996 batch of Indian Information Service. Sir has been instrumental in various big media campaigns of the government, including the very famous Jago Grahak Jago campaign. I'm sure everybody must have heard about that campaign. Not only that, Sir was also instrumental in spearheading the Government of India's strategy for fighting the misinformation, for spreading the correct information during the COVID days. Sir was the director in the Ministry of Health and was spearheading the media relations there. And it was because of him that all that information we saw on the televisions and the newspapers and the radio jingles and even jab hum phone karte the wo Khansi and everything. So Sir spearheaded the whole campaign. So you can judge. And myself, Pallavi Agarwal Srivastava, Deputy Director, 2013 batch. I am posted in Regional Office Jalandhar, National Sample Survey Office, Field Operation Division. सर ने जैसा बताया कि पूरा सिस्टम आंकड़ों पे अनुसार ही योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को बनाता है, तो आंकड़े किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से उसमें कार्य होता है, उसके विषय में थोड़ी सी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में मैं चर्चा कर रही हूँ कि उसका बेस क्या है। एक छोटा सा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिनिस्ट्री का, फर्स्टली वी कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. इट हैज़ टू विंग्स, National Statistical Organization and Program Implementation. Under National Statistical Organization, we have further three parts. First of all, Central Statistical Office, National Sample Survey Office, and the Computer Center. We are here in the National Sample Survey Office, where primarily we collect data from the house-to-house survey, enterprise survey, crop statistics, and some more. So we will have a detailed discussion about this. NSO, National Statistical Organization. First of all, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. Sampling methods. Sampling methods जो है हम अपनी daily life में भी रोज़ इस्तेमाल करते हैं. हमें पता 60% को करना पड़ता है, इसमें पड़ता है और जो लेवल पे अभी हमें
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਉਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਵਰਗੇ ਸੀਈਓਜ਼, ਇੰਦਰਾ ਨੂਈ ਵਰਗੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ 20 ਘੰਟੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। बहुत अच्छा सवाल किया गया और अज के दौर में अज की तारीख में सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इवैल्यूएट भी करना चाहिए, एनालाइज भी करना चाहिए क्योंकि मैं एक शिक्षक संस्थान तो अज इत्थे आके बैठी हूँ तो असी भी यह त्रासदी और यह चैलेंज चुनौती अज असी भी फेस कर रहे हैं कि एक बच्चा कॉलेज जो आता या स्कूल जो जाता तो फीस नहीं दे सकता। वो कहता है कि मैं फीस नहीं दे सकता क्योंकि घर वाले को पैसे नहीं है। लेकिन 2 साल बाद या 3 साल बाद पता चलता है कि वो फाइल कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके इन्होंने कंट्रीज वास्ते तैयार हो गई है कि 25 लाख रुपया, क्योंकि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि उत्थे बैंक पहला पैसे जमा कराने पैंदे हैं, फिर स्टडी वास्ते कॉलेज नूं भी पहला फीस देनी पैंदी है। तो बड़ा वाजिब सवाल है कि ओरिएंटेशन जिस तरह सर ने राजेंद्र चौधरी जी ने बड़ी बाखूबी बयान किया है कि सानू जो मीडिया इत्थे मीडिया इन्नी अच्छी आई हुई है, वरिष्ठ जर्नलिस्ट आए हुए ने, यह साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यह साडा कर्तव्य बनता है कि असीं जन जन तक और कितों के बच्चे जा रहे हैं यह सानू पता है कि मैक्सिमम पंजाब के विलेजेस के बच्चे, शहर के बच्चे अज बाहर को तुर रहे हैं। अगर उन्होंने दिमाग में या कोई ऐसे कैंप उस इलाके में लगाए जाए जितों उन्होंने पेरेंट्स को भी एनलाइटन किया जा सके, थोड़ा दसिया जा सके कि यह गवर्नमेंट स्कीम्स ने इन्ना पैसा तुम बच्चे पे खर्च कर सकते हो और उन्होंने गाइड किया जाए, उन्होंने प्रॉपर ओरिएंट किया जाए और उन्होंने सुजैसट किया जाए, पूरा प्लान उन्होंने सामने रखा जाए कि अगर तुम यह 25 लाख रुपया इस कारोबार में इन्वेस्ट करोगे तो अज तो 1 साल बाद तुहानू रिटर्न आने शुरू होंगे। अगर वो पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट वो सामने आएगा तो शायद बच्चों के कोल भी एक हौसला होएगा कि असीं बाहर नहीं जाना। लेकिन जब तक उन्होंने सामने एक पूरी की पूरी तस्वीर प्रेजेंट नहीं होएगी, तेरी प्रतिभा बुलाए या बगैर प्रतिभा दे पंजाब तो बच्चा रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती सारे वास्ते बनती जा रही है और रहेगी जब तक असी बंद कमरियां जो बाहर निकल के पिंडा में जाके खुले मैदान में लोगों को बुला के तदों तक असी उन्होंने चेतावनी देवांगे, उन्होंने पूरी भाषण देवांगे, उन्होंने कोच पिलावांगे, उन्होंने नाल 3-3 4-4 दिन नहीं बल्कि महीना स्पेंड करके उन्होंने दसांगे अगर असी इस किते में शुरू कर दें तो सानू एह रिजल्ट मिलेगा कदों बनाई मतलब परिवार का इस करके भेज रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके नाल नशा तो बचे। हुण किसी नूं इस गल दा नहीं पता कि जदों वो बाहर चल जांदा बाहर जाके की हुंदा। एक बच्चे का फोन आया वो दस्सिया मैं 3 दिन तो भुखा सी, मैनूं कोई काम नहीं मिलदा। अगे मैं कहना चाहुंदा भी जिहड़े हालात है ना वो ये आ कि नशा तो बचाउण लई अज यूथ बाहर जा रहा है। जे सूबा सरकार तो नहीं कंट्रोल हुंदा सेंटर का फर्ज नहीं बनता कि इन्हों रोकने लिए कुछ ना कुछ करे, पर सेंटर गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही। इसलिए अगर आपने कुछ 5-6 महीने की हेडलाइंस मैं चाहूँ कोई फैक्ट्स आपको अलग से शेयर कर दूँगा, जितने बड़ी मात्रा पे नशे की चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया। आप देखेंगे अमित शाह साहब हर करीब 1 महीने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये बता रहे हैं
कि आज इतने सारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सेंटर्स में इतनी बड़ी तादाद में अफीम, गांजा और जो बाकी नशीले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो नशा मुक्ति पर भी एक बड़ा काम हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इट विल टेक टाइम। और जो दूसरी बात आपने कही कि बच्चा 10 दिन से भूखा था, मैं इसमें एक दूसरा फैक्ट बताता हूँ आपको। यूएसए में the average earning of an Indian who has gone from here to USA is ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 ਥੋੜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ 2000 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ 20 'ਚ। Now, you want to ask the question? थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देना एजुकेशन पॉलिसी है कि थोड़ा जिहा डिफरेंस की सीगा। पहले जो फॉर्मल एजुकेशन सी दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 नर्सरी, छोटे बच्चे जिन्होंने आप उन्होंने इनफॉर्मल एजुकेशन कहते सी, राइट। एंड इट वाज नॉट कमिंग इनटू द रिकॉर्ड्स, किसी भी रिकॉर्ड विच नहीं सीगा। सो हुण जिहड़ा इस वेले है जो फॉर्मल एजुकेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी, जिन्होंने आप फाउंडेशनल स्टेज कहने हैं। नाउ थोड़ा जिहा डिवीजन नूं चेंज किया। फाउंडेशनल स्टेज विल बी फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 2, then there will be primary and then the middle, then the secondary। जिहड़ा पहला सिस्टम सी सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, दैट इज द मेजर डिफरेंस। उस तो बाद सर ने ऑलरेडी दसिया कि एजुकेशन ही देश को बचा सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है, एंड दिस विल बी स्किल बेस्ड। सो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट the education into the skill education skill, right। उस तो बाद जेड़ा 11th और 12th सीगा, now it will start from 9th onwards। now Shri K.S. Randhawa ji, Principal MGM School। I will request संगीता मैम के जो हमारे स्पीकर मिस पल्लवी अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं। एक स्पीकर हमारे अभी पास। सर थोड़ा नाराज हो, सर थोड़ा नाराज हो। सर अगर बुके ऑफ बुक्स के साथ एक फोटोग्राफ हो जाए, हाँ जॉइंटली, तो दैट विल बी वेरी नाइस। के.एस. रंधावा सर आप भी प्लीज़ फोटो में आ जाइएगा। सबसे पहले थैंक यू मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स का, जो आप सब लोग यहाँ आए हो जिन करके ये वार्तालाप कामयाब होता है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। विद ए रिक्वेस्ट कि जो कुछ भी आपने यहाँ सुना है, जाना है, उसकी मैक्सिमम कवरेज ज़रूर हमें प्रोवाइड कीजिएगा, ताकि लोगों तक ये पहुँच सके चीज़ें कि ब्रेन ड्रेन, ब्रेन गेन क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, जो 9 years ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनमें क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और इसके अलावा और भी जो डिस्कशंस हुई हैं यहाँ पे NSS के बारे में, नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में। देन आई एम थैंकफुल टू ऑल द 4 आवर गेस्ट स्पीकर्स। 2 चले गए हैं क्योंकि उनको जाना था, मनदीप कौर नागराज जी एंड मिसेस गुरजोत कौर फ्रॉम KMB। थैंक यू टू पल्लवी मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत देर से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि कुलीग के साथ। थैंक यू मैम, आप आए। थैंक यू टू मिस्टर रंधावा। इनका नाम जब मेरे पास आया था फॉर दिस NEP, मैं कभी इनसे मिला नहीं, आज फर्स्ट टाइम इनसे मिला। सो आई वॉज टोल्ड ही इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ NEP, और ये CBSE की भी और कई और जगह पे भी कॉन्फ्रेंसेस में इसके ऊपर अपने व्यूज़ दे चुके हैं। So thank you so much Randhawa ji for joining us here. Thank you to my additional DG Mr. Rajinder Chaudhary.
under whose guidance this whole वार्तालाप was held. जो मेरे कुछ नए दोस्त मैं देख रहा हूँ मीडिया से, आई थिंक पता नहीं पहले कभी उन्होंने वार्तालाप में पार्टिसिपेट किया होगा कि नहीं। इस तरह के इवेंट्स हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं ताकि जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन है कंसर्न हॉट टॉपिक्स के ऊपर, उसमें इनकी भी जानकारी में बढ़ावा हो और हम भी एक अच्छे व्यू पॉइंट्स आपको देख सके। रंधावा जी, इफ यू कैन हैव लंच विद अस प्लीज। रंधावा जी, I'll request you to have lunch. 10 more minutes, please. Come over. All right. Thank you, Randhava ji. So thank you everybody for coming over. Senior journalists हमारे डोगरा साहब पीछे अपने पुराने साथी भी बैठे हैं. Thank you everybody. Thank you so much. खास मकसद क्या वार्तालाप कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा मीडिया वार्तालाप की योजना बनाई गई है, जिसके तहत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मीडिया के साथ जिला स्तर पर वार्तालाप करता है और उस वार्तालाप के अंदर 3 या 4 सब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आज की ये हम लोगों ने नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन जो पंजाब की स्पेसिफिक समस्या है कि यहाँ से ओवरसीज माइग्रेशन काफ़ी होता है, उसके बारे में बात हुई। नेशनल स्टेटिस्टिकल सैंपल सर्वे जिसके जरिए सरकार अपनी योजनाएं बनाती है और 9 वर्षों में भारत सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं राज्य सरकारों के साथ मिलाकर, उसके बारे में मीडिया से चर्चा की। जैसे आज हमने मीडिया को बताया कि पिछले 9 वर्षों में अगर हम नारी शक्ति की बात करें तो 3 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत जो मकान बनाए गए उसमें से लगभग 2.5 करोड़ मकान खाली महिलाओं को दिए गए, करीब 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए, 27 करोड़ मुद्रा लोन महिलाओं के लिए दिए गए। इसी तरह से देश भर की अगर हम अमृत पीढ़ी की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, तो पिछले 9 सालों में 7 नए IIT, 7 नए IIM, 15 नए एम्स, लगभग 390 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, करीब 70,000 नई MBBS सीट्स और नई शिक्षा नीति का सक्सेसफुल क्रियान्वयन शुरू हो गया, उसके बारे में चर्चा की। तो वार्तालाप और पूरे इंडिया में आती है कि कहाँ कहाँ और क्या क्या जतन करें, कहाँ वार्तालाप हर एक जो स्टेट लेवल की PIB यूनिट है, जैसे यहाँ PIB जलंधर है, वो समय समय पर अलग अलग जिलों में जाके करता है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। लेकिन इस बार हमने इसलिए किया क्योंकि नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष 29 जुलाई को पूरे हो रहे हैं, तो उसके बारे में पूरा प्रचार हो और साथ में अभी 9 साल सरकार के भी पूरे हुए, तो उसकी पॉलिसी के बारे में लोगों को जानकारी हो कि हमें समझना होगा कि इन्फॉर्मेशन इज पावर एंड व्हेन यू आर इन्फॉर्म्ड यू मेक श्योर दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर अकाउंटेबल। और इस तरह से जब हम सूचना लोगों तक पहुंचाते हैं तो प्रशासन को जवाबदेही बनाने में मदद मिलती है। इस तरह से मीडिया वार्तालाप के जरिए मीडिया को जब हम जानकारी देते हैं और वो जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो स्कीमों के बारे में लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आता है। ऐसे प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे सर? बिल्कुल, अभी भी अगर हम पहले भी बताया तो मैं तरन में एक वार्तालाप की थी, कपूरथला में वार्तालाप की थी, आज जलंधर में की है, आगे भी पंजाब के अलग अलग जिलों में समय समय पर इस तरह की वार्तालाप का आयोजन किया।